ایگزسٹ کر رہی ہے، تب سے سائنس ایگزسٹ کر رہی ہے، یعنی ابھی سے سائنس نہیں آئی، یہ بہت شروع سے سائنس جو ہے یہ چلتی ہوئی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، سائنس کا پہلے پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، تب بھی ود دی پیسج آف ٹائم جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، نیو وقت کے ساتھ لائف کو بیٹرمنٹ کی طرف لے جانے کے لیے ٹرائلس کی جا رہی تھیں، لیکن بعد میں ان کو سائنس کے اندر کنسیڈر کر دیا گیا۔ اوور آل اگر ہم بات کریں تو سائنس کے اندر اس کو کنسیڈر کر لیا جاتا ہے ود دی لیول آف، جب لیولس انکریز چینج ہوتے ہیں یا آپ آگے موو کرتے ہو تو پھر اس کو چینج کر دیا جاتا ہے، بایولوجی، فزکس، کیمسٹری، ود دی پیسج آف ٹائم مزید اس کی برانچز بھی بنا دی جاتی ہے۔ تو ان دس کورس جنرل سائنس کورس، ٹھیک ہے، ٹریننگ سائنس ٹیچرز، جس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے سائنس اینڈ نان سائنس، کن چیزوں کو ہم سائنس کے اندر کنسیڈر کریں گے اور کن چیزوں کو ہم سائنس کے اندر کنسیڈر نہیں کریں گے۔ سائنس از کنیکٹڈ ٹو ریئل ورلڈ، وہ ورلڈ جہاں پہ آپ رہ رہے ہو، آپ کے انوائرمنٹ، آپ کی اپنی لائف، اس کا سائنس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ سائنٹفک ایٹیٹیوڈ، آپ کے اندر سائنٹفک ایٹیٹیوڈ کیسے ڈیولپ ہو سکتا ہے، ذرا تبھی ڈیولپ ہوگا جب آپ کی تھنکنگ لاجیکل ہوگی، آپ کی ریزننگ کے ساتھ آبزرو کر کے اپنی کسی چیز تک پہنچو گے۔ انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ سائنٹفک انکوائری، کہ سائنس میں ہم چیزوں کو انکوائر کیسے کرتے ہیں، کیسے ہم آبزرویشن سے لے کے کنکلوژن تک پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اس کے اندر آئے گا۔ فرسٹ آف آل واٹ از سائنس؟ سائنس ہے کیا؟ ٹھیک ہے، لیٹن ورڈ سائنسیا سے انہوں نے اس کا لیا مین نالج، ٹھیک ہے، سائنس کس بیس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، مین سائنس جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے نالج کے اوپر۔ نالج کیا ہے؟ نالج وہ انفارمیشن جو آپ ڈفرینٹ سورسز سے سلیکٹ کرتے ہو، اسے نالج کے اندر آپ کنسیڈر کرتے ہو۔ نالج پر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے انفارمیشن سلیکٹ کر لی، نالج کا فیکٹ کی بیس پہ یعنی ٹروتھ کی بیس پہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ باڈی آف نالج، پروڈکٹ اینڈ پروسیس، باڈی آف نالج کے اندر ڈفرینٹ سورسز، the ways which you are used to gain knowledge and how you can implement that knowledge for different processes. Scientific world, science is related to the world which is present around you. There are different about since universe is existing, since man is existing, شروع سے ڈفرینٹ قسم کی انوینشنس ہو رہی ہیں، لیکن شروع میں پتہ نہیں تھا، اس کو سائنس کے ساتھ کنسیڈر نہیں کیا تھا، ابھی پیسج آف ٹائم سائنس کے ساتھ کنسیڈر کر دیا۔ آپ کی ڈیلی لائف، دی فوڈ یو ایٹ، دی پلیس یو لیو، یور سراؤنڈنگ، اٹ از آل بیکاز آف دی سائنس۔ سائنس ہیز نالج، سائنس میں نالج جو ہے اس کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے، ٹھیک ہے۔ کمنگ سلائڈ میں نالج کو مزید ایکسپلین کر دیا جائے گا۔ سائنس کے تھرو ہی ورلڈ انڈرسٹینڈیبل کر سکتے ہو کہ آپ کے ارد گرد جو ڈفرینٹ قسم کے پروسیسز ہو رہے ہیں وہ کس طرح سے ہو رہے ہیں۔ سائنٹفک نالج کو آپ کس طرح سے چینج کر سکتے ہو، ڈیوریبل ہے، یعنی سائنٹفک نالج جو بھی ہے وہ ایپلیکیبل ہونا چاہیے، آتھرائز ہونا چاہیے، اوتھینٹک ہونا چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز ہائپوتھیسس آج پازیٹیو ہے تو ود دی پیسج آف ٹائم یا آفٹر سم ٹائم اٹ گوز انٹو نیگیٹو اور اٹ پروو دیٹ رانگ۔ سائنس کین ناٹ پرووائڈ کمپلیٹ آنسر ٹو آل کوشچن، یعنی تمام یہ نہیں کہ سائنس میں آپ کو ہر کوشچن کا ہی آنسر ملے گا، یو ہیو ٹو انکوائر اباؤٹ تھنگز بائی یوزنگ سینسز، ٹریڈیشنز، ایکسپرٹ اوپینین، دین یو گیٹ آنسر آف فیو کوشچن۔ ان پریویس سلائڈ آئی ٹولڈ سائنس ایز نالج، سائنس میں نالج بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جیسے ہیومن باڈی کو زندہ رہنے کے لیے انرجی کی ریکوائر ہوتی ہے، انرجی ہم کس فارم میں لیتے ہیں، ان دی فارم آف فوڈ فار اٹس ہیلتھ۔ اسی طرح ہیومن مائنڈ کو بھی ورکنگ کرنے کے لیے کیا ہے کہ نالج کی ضرورت ہوتی ہے اس کی ہیلتھ کے لیے، یعنی ڈفرینٹ سورسز سے جو نالج آپ گین کرتے ہو تو وہ آپ کا فوڈ اور سائنس کہلائے گا۔ نالج جو ہے ڈفرینٹ ویز ہو سکتے ہیں نالج حاصل کرنے کے، تھیوریٹیکل ویز بھی ہیں اور پریکٹیکل اپلیکیشن بھی اس کی ہیں۔ تھیوریٹیکل جس میں آپ سمپل باتیں کرتے ہو، ٹھیک ہے، جیسے کورس بایو میں آپ اگر آپ کو ایک ڈسیکشن کے بارے میں بتا دیا جائے گا، سمپل بتا دیا جائے گا، اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز تھیوریٹیکل نالج، لیکن جب آپ کسی جگہ پہ جا کے باقاعدہ ڈسیکشن کر کے دیکھو گے، باقاعدہ اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کر کے دیکھو گے تو اس کو پریکٹیکل کے اندر کنسیڈر کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی سائنس کے اندر جو نالج ہے اس کی امپلیمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور ایکسپلک یعنی اس سے آپ لے بھی سکتے ہو۔ اب تو میں بہت اونچا بول رہی ہوں حبیبہ، کہ وہ آپ کے چاہے وہ تھیوریٹیکل ہے یا پریکٹیکل وے ہے، اس میں فارمل ویز بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، انفارمل ویز بھی ہو سکتے ہیں، سسٹمیٹک یعنی پراپر سسٹم بھی ہو سکتا ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ نالج صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے انفارمیشن سلیکٹ کرنی ہے۔ نیکسٹ میں جیسے پلوٹو نے کہا کہ ڈسٹنکشن اینڈ نالج اینڈ ٹرو بلیف، یعنی نالج وہ ہونا چاہیے جو ٹرو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔
यानी जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, जिसकी कोई जस्टिफिकेशन है, जिसको बिलीव करना चाहिए, जिसकी वाकई ही कोई एग्जिस्ट करती है। यानी आप नॉलेज ऐसे नहीं लोगे कि जिसकी रियल कोई एग्जिस्ट नहीं है, यानी फैक्ट बेस्ड नॉलेज होना चाहिए। प्रेजेंट आपकी ऑटोमेटिकली लगती है, आप लोग ये कर देते हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट एज वेल एज प्रैक्टिकल वे, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज इस स्लाइड के अंदर दिखा दिए गए हैं। नंबर 1 थिंकिंग, आपकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी बेटर होगी तो आप क्यूरियस हो गए, क्योंकि नॉलेज हासिल करने के लिए आपका क्यूरियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपके अंदर when you will have urge so that I want to do something or I want solution of this problem, तभी आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, उसके बारे में नॉलेज हासिल करोगे, बुक यूज़ करोगे जानने के लिए, आप डिफरेंट मेथड यूज़ करोगे, चाहे एक्सपेरिमेंट करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, अथॉरिटी यानी हायर एक्सपर्ट ओपिनियन लोगे। नॉलेज हासिल करने के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी सेंसेस होती हैं, यानी जो 5 काइंड ऑफ सेंसेस हैं, जिसमें साइट, हियरिंग ये सब शामिल हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज आप कोई लाइब्रेरी में जाते हो, आप उसके टॉपिक से रिलेटेड बुक लेनी है, तो आप पहले इसको देख के ही करोगे, तो इसमें यानी सबसे पहले आप इसकी आपकी सेंस ऑफ साइट इंपॉर्टेंट होगी, पहले सेंसेस इंपॉर्टेंट होंगी, और उसके बाद आप देखोगे कि आपकी सेंसेस के बाद आप देखोगे कि आपकी चीज़ें जो हैं चेंज करने में आपको हेल्प करते हैं। सम आर बेटर देन अदर्स, यानी कुछ जो है वो आपको ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन देंगे एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, साइंस जैसे पीछे साइंस एज नॉलेज, साइंस अंडरस्टैंडेबल अबाउट द वर्ल्ड इस तरह बताता है। तो साइंस क्या है कि फैक्ट बेस्ड पे होना चाहिए। जिस तरह नॉलेज मैंने कहा कि नॉलेज के अंदर आप वही नॉलेज यूज करोगे जो फैक्ट बेस्ड होगा, जो बेस्ड ऑन ट्रुथ होगा। इसके अंदर भी क्या होता है, साइंस में कॉन्सेप्ट एक होता है, फिर आप एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हो। उस वक्त पता नहीं होता हाइपोथेसिस रॉन्ग है या राइट, बाद में थ्योरीज और प्रिंसिपल्स के थ्रू आप पता करते हो कि वो आपकी जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू है या नहीं ट्रू। साइंटिफिक फैक्ट यानी सबसे पहले ये स्टार्ट किससे होता है, ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन के बाद आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो, ठीक है। तो हम न्यूटन हाइपोथेसिस थ्योरी प्रिंसिपल की बेस पे है, तो फिर आपकी कोई ऑब्जर्वेशन होगी, आप उसकी बेस पे कोई कॉन्सेप्ट फेस करोगे, हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट एवर लीगल इन्फॉर्मेशन, यानी जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में कोई, जिसे उर्दू में कह देते हैं मफरूजा, फिर कोई लॉ या थ्योरी डेवलप होगी, और बाद में पता चलेगा कि आपकी हाइपोथेसिस ज़्यादा राइट या रॉन्ग। प्रोसेस यानी साइंस एक पूरा प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट चीज़ें आपस में इन्वॉल्व हैं। ऑब्जर्वेशन से लेके कंक्लूजन तक डिफरेंट चीज़ें होंगी, तो तभी जो है आप उसको साइंस के नॉलेज को फैक्ट बेस्ड नॉलेज कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट एबिलिटीज, जैसे ऑब्जर्वेशन से आप स्टार्ट हो गए, ऑब्जर्वेशन के बाद कम्युनिकेशन इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप डिफरेंट लोगों को इसके बारे में बता सकते हो, इसके डिफरेंट बारे में बातें कर सकते हो, ठीक है। यानी आप एक्सपर्ट ओपिनियन लोगे, हायर अथॉरिटी से बात करोगे। क्लासिफिकेशन यानी तो साइंस को डिफरेंट रीजन्स की बेस पे, तो साइंस एज प्रोसेस कैसे, साइंस एज प्रोडक्ट कैसे, इससे लेकर इससे नॉलेज गेन करके कैसे हम रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। मेजरमेंट की एम्पिरिकल वैल्यूज वगैरह आ जाती हैं। प्रिडिक्शन यानी एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप रिजल्ट दोगे, कोई कंक्लूजन एक्सप्लेन करोगे। इंटीग्रेटेड प्रोसेस स्किल्स, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स, यानी साइंस में तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जब एक प्रोसेस से लेके चलोगे, हाइपोथेसिस को आप सर्च करोगे या करोगे, हाँ जी, यही वजह है सर्वर डाउन आउट करने में आपको हेल्प आउट करें, यानी कौन सी चीज़ें कम या ज़्यादा हो। प्लस लाइफ के के वेरिएबल्स जिनके कम या ज़्यादा होने से साइंस के नॉलेज पे फर्क पड़ सकता है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, डिफरेंट किस्म की इन्वेस्टिगेशन आप करेंगे, यानी हायर अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन लेके डिफरेंट रेफरेंसेस को यूज़ करके एक्सपेरिमेंट्स आप करोगे, डाटा हासिल करोगे। पहले तो आप बिल्कुल ऐसे ही डाटा कलेक्ट कर लोगे, तो जब आप उन ऑर्गेनाइज करोगे उस डाटा को, यानी जो आपका उसमें से कुछ काम का डाटा होगा, कुछ आपके काम का डाटा नहीं होगा, तो फिर टेबल या ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन करोगे कि आइदर ये टेबल या ग्राफ जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग काज एंड इफेक्ट, तो यानी डिफरेंट चीज़ें एक दूसरे को कैसे इफेक्ट कर रही हैं, एक चीज़ के ऊपर या नीचे होने से दूसरे से कैसे फर्क पड़ रहा है। डिफरेंट किस्म के मॉडल्स बनाएंगे, वो साइंस से किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं। यानी साइंस के अंदर डिफरेंट स्किल्स को आप, चाहे वो ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं, डिफरेंट स्किल्स को यूज़ करेंगे। आप सिंगल साइड भी कर सकते हो और डिफरेंट को भी यूज़ कर सकते हो।
फील्ड या साइंस को ऐसे प्रोसेस लेके कहने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जिस तरह शुरू में बताया कि आप इसमें रियल वर्ल्ड यानी इर्द गिर्द की वर्ल्ड के बारे में, जहाँ पे आप रहते हो, एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। डेली लाइफ को जानने के लिए आपको साइंस प्रोसेस के बारे में जानना ज़रूरी है। साइंस होती क्या है, साइंस में नॉलेज, साइंस का हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, साइंस का लिटरेसी रेट पे क्या इम्पैक्ट है, डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं उस पर साइंस कैसे टच कर रही है। जैसे एटीसी उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग ले लिया है, इसमें साइंस का रोल है। टीचिंग साइंस स्किल्स बिलीव यानी साइंस की स्किल्स होंगी तो आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से जान पाओगे। इसको यूज़ करोगे, कौन कौन सी स्किल्स हो सकती हैं? सेक्चुअल अप्रोच, सेक्चुअल का मतलब कि जो भी आपका नॉलेज होगा या जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी इट विल बी ट्रुथ बेस्ड, यानी फैक्ट की बेस पर होनी चाहिए। यानी कुछ भी आप अपनी तरफ से नहीं ले सकते, आप फैक्ट की बेस पे करोगे। आइदर आपके रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं या नेगेटिव। कंसेप्चुअल नॉलेज यानी कंसेप्चुअल अप्रोच, आपकी जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी उसकी कोई ना कोई लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, यानी उसका रियल भी कोई एग्जिस्ट करना चाहिए। मॉड्यूलर यानी इसकी जो मॉडल वगैरह बनाओगे। प्रोसेस अप्रोच, इसको आगे कैसे प्रोसेस करते हो, यानी प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करोगे, फिर हाइपोथेसिस बनाओगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, फिर आप रिजल्ट एक्सप्लेन करोगे, फिर उसको कंक्लूड करोगे, यानी प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में आप चलोगे, तभी आपकी जो साइंस है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगी। साइंटिफिक एटीट्यूड मीन कि आपका साइंस के अंदर एटीट्यूड बेहतर होना चाहिए, यानी आप ऐसे सोर्सेज को यूज़ करोगे जो कि आपके ऑथेंटिक काइंड ऑफ सोर्सेज होने चाहिए। चाहे आप कोई रेफरेंसेज यूज़ करते हो, कोई बुक्स यूज़ करते हो, लेकिन उनकी वाकई में कोई एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, या कोई आपके सुपरवाइज़र या जो आपके एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं, यानी जो एक्सपर्ट हैं जो उधर अपनी फील्ड में जो ज़रा एक्सपर्ट होते हैं, जो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। साइंटिफिक एटीट्यूड के अंदर ये भी आ जाता है कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपके अंदर चीज़ों को सीखने के लिए। क्यूरियोसिटी आपके अंदर होगी तो कभी आप कोई लॉजिक को एक्सप्लेन करोगे कि ये प्रॉब्लम है, मैं इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसकी वजह से मैं ये काम कर रही हूँ। ठीक है, आप क्यूरियस हो गए तो आपके अंदर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उसको कोई चीज़ नहीं मिले तो उसके बारे में क्वेश्चन करना शुरू करता है। तो साइंस में बड़ों का भी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि जब भी कोई उन्हें कोई चीज़ मिले तो उसके बारे में क्वेश्चन करें, उसके बारे में वो इंक्वायर कर सकते हैं। इंक्वायर का मतलब कि उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक्वायरी। ओपन इंक्वायरी, ठीक है, ओपन यानी खुद ही आप करते हो, फिर खुद ही आप प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हो, खुद ही उनकी सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। गाइडेड इंक्वायरी, गाइडेड जिसमें आपको कहीं से हेल्प मिल रही है, जैसे यहाँ पे पढ़ने के लिए वर्कशॉप में टीचर्स आपकी हेल्प आउट कर रहे हैं, इस गाइडेड काइंड ऑफ इंक्वायरी। या आपको कोई आपका सुपरवाइजर है, वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, इसे गाइडेड इंक्वायरी के अंदर ले सकते हैं। गाइडेड इंक्वायरी जिसमें कोई एक्सपर्ट आपकी हेल्प आउट कर रहा होता है। कपल्ड इंक्वायरी जिसमें सेम प्रॉब्लम के बारे में दो लोग बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी जिससे पहले पूरा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है कि पहले हम इस तरह के कोई डिफरेंट रीजन माइंड में एक्सप्लेन कर ली जाती हैं कि हम इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं और इसको करना चाहते हैं, तो फिर उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप आगे काम करते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्वायरी के जब आप इंक्वायर कर रहे हो तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका लाजमी होना चाहिए। ज़ाहिर है उनका ऑथेंटिक होना ज़रूरी है, उनका एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, जिस जगह आप रह रहे हो उस जगह उसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, मैं एंड पे देखिए एवरीडे लाइफ यानी डेली लाइफ में, क्योंकि अगर आप वहाँ पे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो तो आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स को यूज कर सकते हो। तो जैसे साइंस में एक प्रॉपर मैंने कहा कि एक प्रोसेस होगा। सबसे पहले आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, उसके बाद उन चीज़ों को मेजर कर सकते हो। मेजर करने के बाद उसको एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो। फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद कम्युनिकेट कर सकते हो। मेंटल प्रोसेस यानी आप अपना लॉजिकल रीजनिंग दे सकते हो। उसके बाद उसके रिजल्ट वगैरह एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद उसको कंक्लूड करोगे। टीचिंग एंड लर्निंग साइंस, ठीक है, यानी यही पढ़ रहे हैं मेन कि साइंस जो है इसका ताल्लुक आपकी इर्द-गिर्द की एनवायरनमेंट के साथ है। ठीक है, तो सबसे पहले टीचिंग ऑफ नेचर ऑफ साइंस, इसमें टीचिंग होनी चाहिए। साइंस में जब पढ़ते हो तो साइंटिफिक इंक्वायरी से इसका ताल्लुक होना चाहिए। हिस्टोरिकल अप्रोच यानी क्या इसमें काम पहले हो चुका है, उस चीज़ को भी आप बिल्कुल माइनस नहीं कर सकते, उस चीज़ को भी इसके अंदर कंसिडर किया जाता है। रिफ्लेक्टिव अप्रोच का मतलब है कि जब आप काम करते हो तो इसमें कोई ना कोई इसका फ़ायदा होना चाहिए, किसी न किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर
कोई ना कोई पॉजिटिव फाइंडिंग्स की रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे पहले जिस तरह बताया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम पहले ऐसा था कि ऐसा इतना अच्छा कोई नहीं था, यानी जैसे जैसे शुरू में ज्ञान के रिसर्च शुरू से है, लेकिन मैन को दी गई इन्वेंशन की गई जिस जैसी ज़रूरत थी वैसे वैसे इन्वेंशन की गई, बाद में इसको जाके साइंस के साथ जोड़ दिया गया। जैसे अब जो 21st सेंचुरी है इसमें आईटी का रोल बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि इस वक्त ये वक्त की ज़रूरत है। जैसे आपके भी फिजिकल वर्कशॉप से अब आप ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए, इसीलिए उन्होंने चाहा कि साइंस के अंदर भी हम टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी को आपस में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसमें स्टेम का लफ्ज यूज किया जाता है, साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, यानी तमाम चीज़ को आपस में इंटररिलेट कर दिया जाता है ताकि ज़्यादा बेहतर तौर पर जो प्रॉब्लम है सोल्यूशन को फाइंड आउट किया जा सके, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ठीक है। साइंस पीछे ही मैंने बता दिया कि उसी तरह लैटिन वर्ड साइंटिस्ट किया, ठीक है, ये भी एक मैंने इसको ऐड कर दिया इसके अंदर, जिसमें विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट कोई ना कोई एविडेंस बेस पे एविडेंस होगा तो तभी आपका साइंस जो है वो बेटर होगी, तभी आप उसको ऑथेंटिक काइंड ऑफ नॉलेज कह सकते हो। अगर कोई एविडेंस नहीं होगा तो इसे ऑथेंटिक काइंड ऑफ नॉलेज के अंदर कंसिडर नहीं किया जा सकता। एंडलेस सीरीज, यानी साइंस कभी भी एंड नहीं होती। साइंस में जब भी आप काम करते हो, जिस तरह पीछे भी बताया कि हिस्टोरिकल यानी जो काम पहले हो चुका है उसको भी आप कंसीडर करते हैं, जिसको हम रिव्यू लिटरेचर के अंदर भी कंसीडर कर लेते हैं। आप किसी भी चीज़ को टोटली माइनस नहीं कर सकते। साइंस कभी भी एक चीज़ का एंड नहीं है। अगर आपने कोई एक ऑब्जर्वेशन दी है तो वैसे ही रिलेटेड बाई द पैसेज ऑफ टाइम तो दूसरा बंदा भी वैसी ऑब्जर्वेशन दे सकता है। So it is a cumulative and endless series of observations which result in the formulation of new concepts. यानी with the passage of time इसके न्यू कंसेप्ट डेवलप होते हैं, न्यू थ्योरीज की फॉर्मेशन होती है, और इसी चीज़ का नाम जो है साइंस है। यानी इसमें नॉलेज को कभी भी जीरो नहीं हम कह सकते, नॉलेज कभी भी एंड नहीं होता, ये हमेशा कंटिन्यू रहता है, ठीक है। इन साइंटिफिक नॉलेज टेंटेटिव यानी इस पॉइंट का क्या खत्म हो जाएगा, नहीं। साइंटिफिक जो मॉडल्स हैं ये बिल्कुल इसी तरह से रहते हैं, जो लॉज हैं, जो या थ्योरीज डेवलप होती हैं, वो थ्योरीज जो डिफरेंट थ्योरीज जो नेचुरल फिनोमेना को या आपका इन्वायरमेंट को या यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर रही हैं, ये हमेशा चलती हुई चली जाती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इनमें चेंजेस जरूर आती हैं, इनमें एडिशन डिलीशन जरूर कर दी जाती हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को आप ऐसा नहीं कर सकते कि इन दी पास्ट ये एग्जिस्ट करती थी और अब इन दी फ्यूचर ये एग्जिस्ट नहीं करती इन दी साइंस के अंदर। Any other countries the nature of science का कहा है कि इज जस्ट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्चुअल नॉलेज यानी फैक्ट है, ठीक है, लेकिन रियल में क्या है कि साइंस वही है कि जो आप एक्सपेरिमेंट करो, यहाँ पे तो कहते हैं कि जो पॉजिटिव काइंड ऑफ आपके इन्फॉर्मेशन है कि उसको हम कंसीडर करेंगे इट्स नाइस अदरवाइज इट्स नॉट, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंस के अंदर आप कभी भी नेगेटिव थॉट्स को भी माइनस नहीं कर सकते। आपके नेगेटिव रिजल्ट ठीक है तो इसको भी आप अपने क्या करते हो कि आप रीजन पेश करते हो, ठीक है, रीजनिंग पेश करते हो, ठीक है, जिसे हम दो फॉर्म्स में डिवाइड कर लेते हैं, अभी समझ में आ भी जाएगा, ठीक है, जिसे हम डिडक्टिव या इंडक्टिव फॉर्म में, एक में हम जनरल स्पेसिफिक और जिसे हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करते हैं। इस तरह पीछे बताया साइंस ऐसे प्रोडक्ट वर्कआउट करती है जिसमें हम फैक्ट थ्योरीज या क्लास वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, और साइंस ऐसे प्रोसेस जिसमें हम ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होके एक्सपेरिमेंट से पास आउट होते हुए रिजल्ट तक या कंक्लूजन तक रीच आउट करते हैं। का है कि वो जिस तरह मैंने बताया कि इसमें इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी आप इसमें इन दोनों अप्रोचेस को साथ साथ रखोगे। इसमें क्या होगा कि आप इसमें इंडक्टिव यानी जब आप किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देते हो, डिडक्टिव जब आप किसी स्पेसिफिक फेज में से बिल्कुल जनरल की तरफ मूव करते हो, यानी किसी चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन डिडक्ट करते हो, कोई चीज़ जो है वो आप बाहर निकालते हो इन द फॉर्म ऑफ कंक्लूजन, ठीक है। तो साइंस में इंडक्टिव रीजनिंग की इतनी ही इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा डिडक्टिव रीजनिंग यानी ये दोनों अप्रोचेज मिल के नेचर ऑफ साइंस में मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, ठीक है, फिर उसकी बेस पे रिजल्ट वगैरह एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिंगल स्टेप के अंदर ही आप नेचर ऑफ साइंस को या इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दो, जबकि आपको मल्टीपल स्टेप्स में से पास आउट करना पड़ता है, ठीक है, तभी आप किसी चीज़ तक यानी किसी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन तक पहुंचते हो, ठीक है। इसलिए साइंस को कहा गया कि इससे क्रिएटिव कंपोनेंट, यानी इसमें हर विद कैपिटल ऑफ टाइम या हर लम्हे इसमें कोई ना कोई नई चीज़ ऐड करने की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है, ठीक है। आप ऑब्जर्व करोगे, कोई आइडिया डेवलप करोगे,
फिर उन्हें कंक्लूड करोगे और साइंस यानी इस स्टेज पे फिर उन्हें कंक्लूड करोगे, फिर उन्हें एक्सप्लेन करोगे, इम्प्लीमेंटेशन करके देखोगे कि अगर ये काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। इसलिए नेचर ऑफ साइंस क्या है, इज द नेचर ऑफ प्रोग्रेस। जब आप साइंस में साइंटिफिक नॉलेज को यूज करते हुए डिफरेंट प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को फाइंड आउट करोगे, इसमें आप हिस्ट्री को भी माइंड आउट रखोगे, इसमें आप ट्रेडिशंस को भी माइंड में रखोगे, ट्रेडिशंस के अंदर आपका कल्चर वगैरह आ जाता है, जहाँ पे आप रहते हो वो चीज़ आ जाती है, ठीक है। यानी कौन सी चीज़ें हैं जो आप इजीली कर सकते हो, तभी आप साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। साइंटिफिक नॉलेज जो है टेम्परेटिव यानी वो चेंज भी हो सकता है, उसमें आप कई चीज़ें विद पैसिव ऑफ टाइम ऐड करोगे, ड्यूरेबल होनी चाहिए। यानी साइंटिफिक नॉलेज ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ एक्सप्लेन कर दी है लेकिन बाद में क्या हुआ कि जाके कि वो उसकी रियल कोई एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। सेल्फ करेक्टिंग टाइम इसमें मजीद चीज़ों को भी ऐड आप कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट है, जिस तरह अभी शुरू से यही बताते आ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन से लेके एक्सपेरिमेंटेशन तक जब आप एक प्रॉपर वे से चलते हो तो चीज़ों को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। यानी एक सिक्वेंशियल स्टेप्स होने चाहिए, सिस्टमेटिक प्रोसेस या प्रोसीजर यानी सिक्वेंशियल स्टेप्स। यानी आप स्टार्ट कहाँ से हो रहे हो, ऑब्जर्वेशन से हो रहे हो, ऑब्जर्वेशन के बाद आप हाइपोथेसिस दे रहे हो, हाइपोथेसिस के बाद आप एक्सपेरिमेंट दे रहे हो, एक्सपेरिमेंट के बाद आपके रिजल्ट आ जाएंगे, रिजल्ट के बाद आपकी कंक्लूजन आ जाएगी, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी आप क्या है कि जैसे ये इंस्टीट्यूशन यानी जब भी आप किसी चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करने लगते हो तो आप डिफरेंट चीज़ों को माइंड में रखते हो। आप किसी जगह पे हो, आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हो, तो पहला स्टेप क्या होगा, प्रिपरेशन। यानी उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन करोगे, ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉब्लम कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन, यानी जब आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हो तो समटाइम्स तो आप बैठ के उसके बारे में सोचोगे, लेकिन समटाइम्स ऐसे होगा कि आप कोई और काम कर रहे होगे, तब भी आपके ब्रेन में कोई ना कोई आइडियाज जो है वो टच करेंगे। यानी कोई इंटेंशनल अटेम्प्ट इसके अंदर आपकी नहीं होगी, लेकिन आपको आइडियाज जो है आ जाएंगे। इलिमिनेट यानी जो डिफरेंट आइडियाज जो हैं उनको आप एक जगह पे इकट्ठा कर लोगे। और वेरीफाई, इसमें से जैसे प्रॉब्लम के आपके पास 4 आइडियाज आए हैं, फिर आप उनको वेरीफाई करोगे, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि जो चारों के चारों आइडियाज हैं आप उनको इम्प्लीमेंट भी कर सको, ठीक है। आप उसको इनमें से एक आइडिया इम्प्लीमेंट करके देखोगे, दूसरा इम्प्लीमेंट करके देखोगे, तीसरा इम्प्लीमेंट करके देखोगे कि इसमें से कितने वैलिड हैं या कितने रिलायबल हैं। तो साइंटिफिक मेथड साउंडेड होना चाहिए, साउंडनेस होनी चाहिए, यानी इसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। यानी जो भी आपने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है किसी प्रॉब्लम का, वो ज़्यादा बेटर होनी चाहिए, ठीक है। यानी डिफरेंट वे से आप किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुँचोगे, ठीक है। तो वही आपके स्टेप्स कौन कौन से 7 एलिमेंट्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। पर्पजफुल ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, ठीक है, एनालिसिस होनी चाहिए, आप उसको इजीली एनालाइज कर सको, हाइपोथेसिस दे सको, उसकी एक्सपेरिमेंटेशन कर सको, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद आप जजमेंट कर सको कि अगर ये एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे, कोई रीजन दे सको, ठीक है। और इसके अलावा आप इसको कंक्लूड कर सको, ठीक है। डू यू थिंक दैट साइंस नेवर प्रूव एनीथिंग बट ऑलवेज टेक प्रूफ, ऐसे नहीं है, ठीक है। वही जो बात जो मैंने बताई कि साइंस के अंदर आप पॉजिटिव चीज को भी माइंड करते हो, लेकिन अगर आपके कोई नेगेटिव इफेक्ट या नेगेटिव रिजल्ट सामने आए हैं तो आप इनको भी माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि साइंस जो है वो आपकी फैक्ट बेस्ड है। तो फैक्ट बेस्ड के अंदर आपके नेगेटिव काइंड ऑफ रिजल्ट भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये वही लिखा है, मेक ऑब्जर्वेशन, ठीक है, थिंक ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन बनाओगे, फिर उसके बाद ठीक है आप उसको हाइपोथेसिस जनरेट करोगे, उसको चेक करोगे, ठीक है, डाटा को चेक करोगे, उसको स्कैन कर सकते हो, फिर कोई थ्योरी बना सकते हो, ठीक है, कंक्लूड कर सकते हो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। यानी साइंटिफिक मेथड क्या है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। यानी पिछली इंफॉर्मेशन को दोबारा किसी न्यू रिसर्च की एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। यानी एक एक्सपेरिमेंट आपने किया, ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट किया, लेकिन नेक्स्ट में दोबारा उसी को इंफॉर्मेशन नॉलेज को यूज करते हुए सेकेंड टाइम भी उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। चेंजिंग योर माइंड इज साइन ऑफ वीकनेस, यानी एक दफ़ा अगर आप सोच के देते हो कि मैंने ये काम करना है,
تو پھر آپ اس کے بارے میں پورا کام کرو، یعنی کہ ریزن پیش کرو، ٹھیک ہے. لاز یعنی آپ کوئی آپ پیس مائنڈ کرنا فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہو تو اس کے بارے میں پھر آپ فائنڈ آؤٹ کرو. یہ نہیں کہ آپ ریسرچ کر رہے ہو، آپ ریسرچ آپ نے کر لیا ہے تو مشکل لگ رہی ہے یا کرنا نہیں آ رہی جو بھی ہے تو آپ اس کو اگنور نہیں کریں. جنریشن ہے اس جنریشن میں جو آپ کو ریکوائرمنٹ چاہیے، جیسے اب اس وقت کی ریکوائرمنٹ تھی آن لائن ورک شاپ، تو اس ڈفرینٹ لوگوں نے بتایا آئی ہیو فاؤنڈ دی مسنگ لنک بٹوین دی ہائر ایج اینڈ سویلائزڈ مین، اٹ از وی. ٹھیک ہے، یعنی جو ہائر ایج یعنی جو پہلے